پانی کے ریسورسز کو غیر متنازع رکھیں. یہ ایک سیریس ایشو ہے. پیپلز پارٹی ہی صحیح نمائندگی کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ پازیٹیو سیاست کے لیے رکھتے ہیں. سندھ کو دریائے سندھ سے نہروں کے فیصلے پر بہت خدشات ہیں. صدر مملکت نے خطاب میں مثبت انداز میں حکومت کو خبردار کیا. نہروں کے حوالے سے متفقہ فیصلہ لینا چاہیے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پارلیمنٹ ہاؤس میں غیر رسمی گفتگو. کہا وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے مسائل حل کرنے کا یقین دلایا ہے. حکومت کے ساتھ ہمارے تعلقات سب کے سامنے ہیں. ہاف ٹرم کا وزیر اعظم کا فارمولا ہمیشہ مسترد کیا ہے. بلاول بھٹو نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو صوبے میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی پرواہ نہیں. وفاق کی ذمہ داری ہے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے معاملے کو خود دیکھیں. ملین پاؤنڈ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں خزانے میں جمع کراتے ہیں. خیانت اور بددیانتی سے اس کو ایسے اکاؤنٹ میں بھیج دیا جس کا کہ پاکستان کے خزانے سے کوئی تعلق نہیں. چیف جسٹس صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پیسہ حکومت پاکستان کا ہے, پاکستان کے عوام کا ہے. یہ فنڈ جس طرح چاہے حکومت پبلک ویلفیئر کے لیے استعمال کر سکتی. 190 ملین پاؤنڈ کی منتقلی بدترین بددیانتی تھی. رقم خزانے میں نہیں بھیجی گئی. چیف جسٹس نے کہا حکومت یہ پیسہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر سکتی ہے. 190 ملین پاؤنڈ وفاقی حکومت کو منتقل کرنے پر چیف جسٹس آف پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا دانش یونیورسٹی کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں اظہار خیال. کہا دانش یونیورسٹی جدید ٹیکنالوجی اور آلات سے آراستہ ہوگی. یونیورسٹی کا نصاب جدید بین الاقوامی معیار کے مطابق ترتیب دیا جائے. ملک کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس چینی موجود ہے. FBR مانیٹرنگ سسٹم سے چینی کی اسمگلنگ روکنے میں مدد ملی. پہلی بار افغانستان چینی اسمگل نہیں ایکسپورٹ ہوئی ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں اس سال $36 ارب کی ترسیلات زر آئیں گی. زر مبادلہ کے ذخائر ریکارڈ سطح پر ہے. تجارتی خسارے میں نمایاں کمی آئی ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے پاکستان نے اڑان بھر لی. جو اقدامات عوام کے مفاد میں ہوں گے وہ کریں گے. PTI کے دور میں تحریک عدم اعتماد رکوانے کے لیے قومی اسمبلی کو تحلیل کیا گیا. اسمبلی کی تحلیل پر آرٹیکل 6 کا کیس بنتا تھا. ہم نے سیاسی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا. خیبر پختونخوا کے سینیٹرز نہ ہونے کا جواب خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر اور وزیر اعلیٰ دیں. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال. سینیٹر شبلی فراز نے کہا وزیر قانون کی وضاحت مسترد کرتا ہوں. اسمبلی تحلیل کی بات کرتے ہیں تو سندھ ہاؤس کا بھی ذکر کریں. منفی پروپیگنڈے میں ملوث PTI کے 25 افراد کی آج دوبارہ طلبی. سیکرٹری جنرل PTI سلمان اکرم راجہ, رؤف حسن, کنول شوذب, اسد کیسر شاہ فرمان پیش ہو گئے. JIT نے پہلے بھی 5 گھنٹے تفتیش کی تھی. ذرائع کے مطابق شاہ فرمان نے JIT کے سامنے نامناسب رویہ اختیار کیا تھا. پارلیمنٹ پر حملہ ہو تو ٹرائل انسداد دہشت گردی عدالت میں چلے گا, اور اگر حملہ فوجی تنصیب پر ہو تو ٹرائل ملٹری کورٹ میں کیوں ہوگا؟ یہ تفریق کس اصول کے تحت کی جاتی ہے؟ جسٹس جمال مندوکیل کی سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کے دوران ریمارکس. کہا پہلے ملٹری کورٹس میں ٹرائل صرف آرمڈ فورسز ممبران کا ہوتا تھا, پھر آرمی ایکٹ میں سیکشن D کو شامل کیا گیا. آرمڈ فورسز اور سویلینز کے گٹھ جوڑ کی بنیاد پر فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوئے. جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے. موجودہ اپیل میں بار بار FBLE کیس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس کیس کو موجودہ کیس سے نہیں ملایا جا سکتا. موجودہ کیس اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل جاری. سماعت کل تک ملتوی. مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں 7 دن کی توسیع. ATC کی آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. عبوری چلان پیش کرنے کی درخواست پر نوٹس. عدالت نے ملزم ارمغان کے والدین کو 5 منٹ کے لیے ملاقات کی اجازت دی. جج نے ارمغان سے پوچھا آپ کو مارا پیٹا تو نہیں, جس پر ارمغان نے کہا پولیس کسٹڈی میں نہیں رہنا.
पाकिस्तान ने IMF को बिजली 2 रुपए फी यूनिट सस्ती करने पर राजी कर लिया। ज़राए का कहना है IMF ने बिजली का बुनियादी टैरिफ कम करने की उसूली मंजूरी दे दी। टैरिफ कम करने का हतमी फैसला आइंदा माह होगा। ज़राए के मुताबिक IMF ने डिस्कोस की नाकिस कारकर्दगी को तवानाई के शोबे में इस्लाहात में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया। हुकूमत ने मुज़ाकरात में 3 डिस्कोस की निजकारी का प्लान पेश किया। पहले मरहले में आइस्को, फेस्को और गेपको की निजकारी की जाएगी। IMF का कहना है डिस्कोस की निजकारी के बगैर तवानाई के शोबे में दुरुस्ती मुमकिन नहीं। वजारत प्लानिंग में करप्शन की शिकायत पर महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने अफसर को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, करप्ट अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। सैलाब ज़दगान के लिए मिलने वाले $3 करोड़ तुर्की और शाम के मुतासरीन के लिए इस्तेमाल किए गए। ऑडिट हुकाम के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। बताया एशियाई तरक्याती बैंक की इमदाद सैलाब मुतासरीन के लिए थी, इसका दीगर इस्तेमाल गैर कानूनी है। चेयरमैन NDMA ने बताया, बरदर मुल्कों की इमदाद के लिए अपने स्टॉक को इस्तेमाल किया जाता है। हमने जो स्टॉक इस्तेमाल किया उसको दोबारा हासिल कर लिया गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, जब ग्रांट या कर्ज का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं किया जाता तो डोनर से मजीद इमदाद भी नहीं मिलती। ग्रांट के गलत इस्तेमाल पर सेक्रेटरी इक्तिसादी उमूर डिवीजन से पूछा जाए। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर मच के इलाके पीरो कन्नरी में नामालूम अफराद की फायरिंग, ट्रेन ड्राइवर जख्मी हो गया। वाक़े के बाद सिबी के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लाहौर के मेयो अस्पताल में इंजेक्शन से 2 अफराद की मौत की और शाम के मुतासरीन के लिए इस्तेमाल किए गए। ऑडिट हुकाम के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। बताया एशियाई तरक्याती बैंक की इमदाद सैलाब मुतासरीन के लिए थी, इसका दीगर इस्तेमाल गैर कानूनी है। चेयरमैन NDMA ने बताया, बरदर मुल्कों की इमदाद के लिए अपने स्टॉक को इस्तेमाल किया जाता है। हमने जो स्टॉक इस्तेमाल किया उसको दोबारा हासिल कर लिया गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, जब ग्रांट या कर्ज का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं किया जाता तो डोनर से मजीद इमदाद भी नहीं मिलती। ग्रांट के गलत इस्तेमाल पर सेक्रेटरी इक्तिसादी उमूर डिवीजन से पूछा जाए। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर मच के इलाके पीरो कन्नरी में नामालूम अफराद की फायरिंग, ट्रेन ड्राइवर जख्मी हो गया। वाक़े के बाद सिबी के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लाहौर के मेयो अस्पताल में इंजेक्शन से 2 अफराद की मौत की इंक्वायरी मुकम्मल। अस्पताल इंतजामिया का कहना है रिपोर्ट महकमा सेहत के हवाले कर दी गई। ज़राए का कहना है डॉक्टर्स और नर्सेज के एहतजाज की वजह से रिपोर्ट सामने नहीं लाई जा रही। सूबाई वज़ीर सेहत सलमान रफीक ने कहा, रिपोर्ट के नताइज जल्द अवाम के सामने होंगे। खैबर पख्तूनख्वा फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल एलाइड हेल्थ साइंसेज के डिप्लोमा इम्तहानात में इंतजामात का फुकदान। पेशावर में इम्तहानात के दौरान तलबा और तालिबात को जमीन पर बिठाया गया। तलबा नकल करते दिखाई दिए। एनाटमी का पर्चा आउट ऑफ कोर्स होने की शिकायत भी सामने आई। मुशीर सेहत एहतशाम अली ने इम्तिहान में बदनज़मी और नकल का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका हुकाम को 3 दिन में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। सिंध की 9 जामियात में वाइस चांसलर्स की मुद्दत खत्म होने पर नए वाइस चांसलर की तकर्रुरी की समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी गई। यूनिवर्सिटीज में कायम मकाम वाइस चांसलर्स को इजाफी चार्ज और नए तकर्रुर के लिए इश्तिहार की दरख्वास्त की गई है। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जुल्फ़िकार भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो और दीगर शामिल हैं। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 21 दिन बाकी। हुकूमत ने अफगान सिटीजन को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दे रखी है। हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलत के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पाकिस्तान में रिहाइश के ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों को कानूनी तकाजे पूरे करना होंगे।
The TTP, the Tehreek-e-Taliban Pakistan, with 6,000 fighters, is the largest designated terrorist organization operating from Afghanistan. With safe havens close to our border, the TTP has conducted numerous attacks against Pakistan's soldiers, civilians, and institutions. कलअदम टीटीपी अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों के लिए छतरी बन रही है, जिनका मकसद हमसाया मुल्कों में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाना है। इस वक्त कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड जैसी 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल से खिताब, कहा अफगान उबूरी हुकूमत दाइश से मुकाबला करते हुए दूसरी दहशतगर्द तंजीमों से निमटने में नाकाम रही है, जो खित्ते और आलमी अमन के लिए खतरा बन गई है। 6000 जंगजुओं पर मुश्तमिल कलअदम TTP सरहद के साथ महफूज पनागाहों से पाकिस्तान पर हमला करती। कलअदम TTP को अफगान हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। काबुल एयरपोर्ट धमाके के इल्जाम में गिरफ्तार दहशतगर्द शरीफुल्लाह की अमरीकी रियासत वर्जीनिया की अदालत में पेशी। अमरीकी महकमा इंसाफ ने शरीफुल्लाह को दाइश का कारिंदा करार दिया। वफाकी जज का मुल्जिम शरीफुल्लाह को मुकदमात की समाअत के दौरान जेल में रखने का हुक्म। मुल्जिम शरीफुल्लाह ने गुज़िश्ता हफ्ते समाअत में दहशतगर्द तंजीमों को मदद फराहम करने का एतराफ़ किया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब में शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में मदद देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। अमरीका के लिए सफरी पाबंदी का हुक्मनामा आज जारी होने का इम्कान। सफरी पाबंदी में मुमकिना तौर पर शामिल मुल्कों के नाम सामने आ गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान और लबनान के नाम शामिल होने का इम्कान। लीबिया, फ़लस्तीन, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन के नाम भी शामिल। हुक्मनामे के तहत मुसाफिरों की जांच का ठीक निज़ाम न रखने वाले मुल्क जद में आएंगे। फहरिस्त में शामिल मुल्कों के शहरी अमरीका नहीं जा सकेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे पर सफरी पाबंदी आयद करेंगे। सऊदी अरब की सालसी में अमरीका और यूक्रेन के दरमियान जद्दा में मुज़ाकरात का आगाज। यूक्रेन की जानिब से महदूद पैमाने पर जंगबंदी की तजवीज़। मुज़ाकरात से पहले यूक्रेन का मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला। 337 ड्रोन दागे, कई अफराद हलाक और जख्मी हुए। मॉस्को के मेयर का कहना है 91 ड्रोन मार गिराए। जवाबी कार्रवाई में रूस ने कीव पर 126 ड्रोन दागे। हमलों से चंद घंटे पहले सदर ज़ेलेंस्की ने सऊदी वली अहद से मुलाकात की। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना था सऊदी अरब खित्ते में इस्तेहकाम और बैनुल-अक़वामी अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा मशरिक़ वस्ता में सऊदी अरब की बैनुल-अक़वामी सतह पर सिफारती कोशिशें काबिल कदर हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी सऊदी वली अहद से जद्दा में मुलाकात की। इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां बददस्तूर जारी। इसराइल ने गजा को पानी फराहम करने वाले सबसे बड़े प्लांट की बिजली भी काट दी। लाखों अफराद पानी से महरूम। इमदाद रोकने से शहर में गजाई किल्लत का बहरान पैदा हो गया। कतर और उर्दन का कहना है इसराइल इमदाद की फराहमी और प्लांट की बिजली काट कर गजा में कहत पैदा करना चाहता है। हमास का कहना है गजा और मिस्र के दरमियान सरहद पर इसराइल अब तक काबिज है। यमनी हौसियों का कहना है इसराइल ने आज इमदाद की फराहमी पर पाबंदी खत्म ना की तो बहीरा अहमर में जहाज़ों पर हमले शुरू कर देंगे। शाम के कुर्द इलाकों में जंग बंदी। कुर्द ज़बान सकाफत को तस्लीम करने का मुआहदा। कुर्दों की शामी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को रियासती इदारों में ज़म किया जाएगा। मुआहदे के मुताबिक सरहदी गुजरगाहें, हवाई अड्डे और ऑयल फील्ड हुकूमत के कंट्रोल में आ जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा का एक वफ़द सूरत हाल पर नजर रखने के लिए शाम पहुंच गया है। फिलिपाइन के साबिक सदर रोड्रिगो ने इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जाम में गिरफ्तार। बैनुल-अक़वामी जंगी जराइम की अदालत की जानिब से वारंट जारी होने पर इंटरपोल ने उन्हें हांगकांग से फिलिपाइन पहुंचने पर पकड़ लिया।
साबिक फिलिपाई सदर पर मनशियात फरोशों के मावरा अदालत कत्ल कराने का इल्जाम भी है। और पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कीवी टीम में अहम तब्दीलियां, मिचेल सेंटनर की जगह माइकल ब्रेसवेल कप्तान पर मुकर्रर। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के 7 खिलाड़ियों को टीम में जगह दी गई। कई कीवी खिलाड़ी IPL खेलने के बाद स्क्वाड का हिस्सा नहीं। टीम में ऐश चौधरी और बेन सीयर्स की वापसी। मैट हेनरी आखिरी 2 मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे।